کیا ہو گیا میرا؟ اتنا رونا دھونا کیوں؟ ہمارے بیچ کچھ غلط نہیں ہوا میری جان؟ زران کی بھاری مدہوش اور رونقدار آواز اس سرد اور سنسان کاٹیج کی خاموشی میں گونجی۔ باہر مری کا ہولناک برفانی طوفان اپنی پوری شدت سے چل رہا تھا۔ وہ یکوستہ ہوائیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، مگر کاٹیج کے اندر جذبات اور قربت کا ایک انوکھا، بے قابو اور ابلتا ہوا طوفان امٹ رہا تھا۔ میرا سردی کی شدت اور حیا کے غلبے سے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کی گلابی نازک ہونٹ سردی سے نیلے پڑ چکے تھے اور وجود سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ زران سے اپنی محبت کی یہ تکلیف تھا اور بے بس حالت دیکھی نہیں گئی۔ اس سے بے ساختہ ایک دیوانگی کے عالم میں آگے بڑھ کر اسے اپنی مضبوط چوڑے اور گرم بازوؤں کے آہینی حصار میں قید کر دیا۔ میرا نے گھبرا کر اپنی ڈبڈباتی سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھا اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے سینے پر ہلکی سی مزاحمت کرنی چاہی، مگر زران کی گرفت اتنی مضبوط، دعویدار اور حق جتانے والی تھی کہ اس کے چوڑے سینے میں دھنس کرائی گئی۔ زران نے اسے مکمل طور پر خود میں بیچتے ہوئے اپنی سلگتے وجود کی ساری حدت اس تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کی گرم اور تیز چلتی ہوئی سانسیں میرا کے سرد اور برف جیسے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے میرا کے پورے وجود میں ایک عجیب سی میٹھی، خمار آلود سنسناہٹ دوڑ گئی۔ زران کی گہری سیاہ اور خمار سے چور نظریں اس کے کانپتے لبوں پر جمی تھی۔ اس نے بنا کسی جھجک کے اپنے جائز حق اور اپنی بے پناہ جنونی محبت کا بے باک اظہار کرتے ان کے درمیان موجود تمام واسطے، ہچکچاہٹ اور حیا کی وہ تمام دیواریں ہمیشہ کے لیے گرا دی جو اب تک ان کے بیچ حائل تھی۔ وہ لمحہ ان دونوں کے ایک دوسرے کی روح میں مکمل طور پر جذب کر گیا۔ زران کا لمس اس قدر شدت بڑا، گہرا اور اپنائیت سے لبریز تھا کہ میرا کے اعصاب پگھلنے لگے اور وہ اس کے مضبوط وجود کے سحر میں مکمل طور پر کھو گئی۔ اس نے میرا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی بھیگی کانپتے پلکوں کو انتہائی عقیدت اور محبت سے چوما۔ زران نے سے وہ گرماہٹ، وہ دیوانگی اور وہ تحفظ دیا جس کی اسے اس برفیلی اور وحشتناک رات میں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اس شدت بھری قربت نے ان کے نئے رشتے کو ایک انتہائی گہرے، پاکیزہ اور مضبوط بندھن میں باندھ دیا۔ میرا کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ خوشی، حیا اور ایک انجانے سے خوف کے ملے جلے جذبات میں گری تھی۔ اسے زران کے سینے پر اپنے ننھے ہاتھوں سے ایک بار پھر ہلکا سا وار کرتے بچوں کی طرح سسکتے ہوئے کہا، آپ نے میرے ساتھ سب کچھ کر لیا۔ زران نے اس کی اس قدر معصومیت اور سادگی پر ایک انتہائی دلکش اور جان لیوا مسکراہٹ کے ساتھ اسے مزید اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر سرگوشی کی۔ نہیں میری بیگم، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے میرا کو دوبارہ نرم بستر پر لٹا دیا۔ میرا مزید گھبرا گئی اور اس نے مدہوش کر دینے والی صورتحال اور زران کی بے باک نظروں سے بچنے کے لیے فوراً پیٹ درد کا ننھا سا بہانہ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ جس پر زران نے ایک بلند اور خوبرو کہکا لگایا جو پورے کاٹیج میں گونج گیا اور اس کے کان کے بالکل قریب جھک کر اپنی دل فریب اور مخملی آواز میں بولا، وہ درد تو میری جان 9 ماہ بعد ہوگا۔ زران کی اس بے باک، کھلی اور شرارت بھری بات پر میرا کا معصوم چہرہ شرم سے مکمل سرخ ہو گیا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی اور وہ فوراً کمبل میں منہ چھپا کر رکھی، جبکہ زران اسے بے پناہ محبت، سرشاری اور ایک فاتحانہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ یہ کہانی دراصل ان دو کزنز کی ہے جن کی زندگیاں اور مقدر بچپن سے گھر کے بڑوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے تھے، مگر ان کے دل کے تار کب جڑے یہ بات ان دونوں کی سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ میرا محض 20 سال کی ایک انتہائی خوبصورت، باحیا، نرم دل اور معصوم سی لڑکی تھی جس کی نشیلی آنکھیں، دھوتیا رنگت اور معصوم سی مسکراہٹ کسی کو بھی پہلی نظر میں اپنا دیوانہ بنانے کے لیے کافی تھی۔ اس کی سادگی اور معصومیت اس کا سب سے بڑا زیور تھا۔ وہ دنیا کی چالاکیوں سے بالکل ناواقف ایک پھول جیسی نرم و نازک سی لڑکی تھی۔ اس کے بالکل برعکس زران 25 سال کا ایک انتہائی خوبرو، دراز قد، مضبوط جسم کا مالک اور بے حد کامیاب بزنس مین تھا جو اپنے سخت مزاج، بے پناہ غصے، ضدی پن اور روب کے لیے پورے خاندان اور کاروباری حلقوں میں جانا چاہتا تھا۔ زران کے والد سکندر اور مرحا کی والدہ ساجدہ بیگم آپس میں سگے بہن بھائی تھے اور سب ایک بہت ہی بڑی عالیشان شاہانہ حویلی نما کوٹھی میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ زران ہمیشہ سے ہی بچپن سے لے کر جوانی تک مرحا کے معاملے میں بے حد حساس اور جنونی رہا تھا اور وہ کسی مرد کی نظر تو دور کی بات، کسی کا مرحا کے قریب بھٹکنا، اسے ہنس کر بات کرنا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
मेरा कि हर चीज़ पर वो अपना पैदाइशी हक समझता था, मगर उसने कभी अपने उस जुनूनी रूप, अपनी उस शिद्दत और अंदर छुपी बेपनाह पागल कर देने वाली मोहब्बत का मेरा के सामने खुलकर इजहार नहीं किया था। मेरा हमेशा उसके गुस्से, उसकी खामोशी, उसके रूप से डरती थी और अक्सर उसकी तेज चुपती नज़रों से बचने के लिए उससे फासला रखने की कोशिश करती थी। मरी के इस फैमिली ट्रिप पर आने से महज कुछ दिन पहले ही खानदान के बड़ों ने अचानक फैसला किया कि उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया जाए, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ घूम फिर सके, उनके दरमियान की दूरियां खत्म हो और वो एक दूसरे को करीब से जान और समझ सके। निकाह इंतहाई सादगी से घर के अफराद और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में हुआ, जबकि रुखसती कुछ माह बाद धूमधाम से होना तय पाई थी। निकाह के बाद सरान का रवैया मिराज के लिए अक्सर बदल गया। वो मोहब्बत, वो सालों से अपने दिल में जो छुपाए बैठा था, वो अब एक तूफान बनकर बाहर आ रही थी। वो अब उस पर खुले आम सबके सामने अपना हक जताने लगा था और उसकी नजरों में मौजूद बेपनाह और गहरी मोहब्बत बेहा को अक्सर उलझा देती थी, उसके दिल की धड़कनों को बेहद बेतरतीब कर देती थी और वो उसकी नजरों की तपिश से घबरा कर, शर्मा कर इधर उधर छुपती फिरती थी। मरी का ये फैमिली ट्रिप खानदान के सभी लोगों के लिए बहुत शानदार तरीके से प्लान किया गया था। सभी बहुत खुश थे, सर्द मौसम का लुत्फ उठा रहे थे और इस ट्रिप को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे थे। मगर ज़ारान और मिरहा के दरमियान निकाह के बाद से एक अजीब सी कशिश, एक अनोखी सी बेकरारी और खामोश सी झिझक पैदा हो गई थी। मिरहा जब भी तैयार होकर सर्दी से बचने के लिए मोटे कपड़े पहने, शाल ओढ़े ज़रान के सामने आती तो ज़रान अपने सारे काम छोड़कर बस उसे ही देखता रह जाता। उसकी स्याह बोलती आंखें ज़रान को अपनी सहर में मुकम्मल तौर पर जकड़ लेती थी। ज़रान अक्सर उसे छुप छुप कर देखता, उसे छेड़ने का, उसके करीब जाने का या उससे बात करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। माल रोड घूमते हुए जब सर्दी बहुत ज्यादा थी, रात के वक्त भीड़ भी भर चुकी थी, तो ज़रान ने बेसख्ता आगे बढ़कर मिरा का नाजुक और ठंडा हाथ अपने मजबूत और गर्म हाथ में थाम लिया। मिरा ने घबरा कर दिल की तेज धड़कनों के साथ आसपास फैमिली को देखकर अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर ज़रान ने गिरफ्त और भी सख्त कर दी। उसकी उंगलियां मिरा की उंगलियों में व्यवस्थ हो गई और उसने मिरा के कान के करीब झुककर अपनी गर्म सांसों के साथ सरगोशी की। चुपचाप बिना कोई नखरा किए मेरे साथ चलती रहो, वरना इस रश में कहीं गुम हो जाओगी, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मिरा ने शर्मा कर अपना सर झुका लिया, उसके गालों पर हया की गहरी सुर्खी छा गई और वो खामोशी से उसकी कदमों से कदम मिलाकर चलने लगी। वो दोनों पूरी फैमिली के साथ घूम रहे थे, मगर ज़रान की पूरी तवज्जो, उसका ध्यान और उसकी गहरी नजरों में सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरत मनकुआ पर ही उसकी मरकूज थी। वो इस ट्रिप को अपनी जिंदगी का सबसे हसीन, सबसे खास और यादगार ट्रिप बनाना चाहता था। माल रोड की इस भीड़ में खरीदारी करते और खाते पीते अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगी और शदीद बर्फबारी शुरू हो गई। धुंध इतनी तेजी से बढ़ी कि कुछ कदमों के फासले पर कुछ सुझाई ही नहीं दे रहा था। इसी अफरा तफरी, शोर शराबे और तूफान में लोग इधर उधर भागने लगे और ज़रान और मिरहा अपनी फैमिली से बिछड़ गए। ज़रान ने मिरहा को मजबूती से अपने साथ लगाया और एक वीरान मगर महफूज नजर आने वाले कॉटेज की तरफ ले गया, ताकि उस तूफान और जमा देने वाली सर्दी से बच सके। और यहीं से उस दीवानावार और मोहब्बत भरी रात का आगाज हुआ था, जब उनके दिलों के सारे फासले मिट चुके थे और मिरहा ज़रान की मोहब्बत की थकन से चूर और सुकून नींद सो रही थी। तो ज़रान उसे गर्म कंबल में अच्छी तरह लपेटकर बहुत एहतियात से बिस्तर से उठा, ताकि वो बाहर जाकर अपनी और मिरहा के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सके, क्योंकि तूफान की वजह से वो रात से भूखे थे। मिरहा ने नीम गनूदगी में आंखें खोले बगैर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहा और एक अनजाने खौफ के तहत बोली, बाहर बहुत तूफान है, सर्दी है, आप मत जाए, मुझे डर लग रहा है। मगर ज़रा ने मुस्कुराकर बहुत प्यार से उसके माथे पर अपने लब रखे, उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं बस अभी कुछ लेकर आता हूँ, तुम आराम करो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जरान कॉटेज का भारी और पुराना दरवाजा खोलकर उस बर्फीली, तारीख और तूफानी रात में बाहर निकला। बर्फबारी बहुत तेज हो चुकी थी और हर तरफ सफेदी ही सफेदी थी और सड़कों पर बर्फ जमने की वजह से फिसलन और धुंध बहुत ज्यादा थी। जहान ने अपनी सड़क अबूर करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए थे कि अचानक गहरी धुंध और बर्फ के तूफान को चीरती एक बेकाबू तेज रफ्तार और भारी गाड़ी सीधी उसकी तरफ आई।
ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की। टायरों की खौफनाक आवाज़ भी आई, मगर पिस्टन की वजह से गाड़ी बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी और उसके बर्फ ब्रेक फेल हो चुके थे। और इससे पहले कि ज़रान खुद को बचा पाता, कुछ समझ पाता या पीछे हट पाता, वो खौफनाक गाड़ी ज़रान के मजबूत और तवाना वजूद को बेदर्दी से कुचलती हुई उसे रौंदती हुई आगे निकलकर एक दरख्त से टकरा गई। एक दिल दहला देने वाला जोरदार धमाके की आवाज़ आई और ज़रान का वजूद सड़क पर कई फुट दूर जाकर गिरा। कॉटेज के अंदर गर्म बिस्तर पर मौजूद मिरा के दिल की धड़कन जैसे किसी ने मजबूती से मुट्ठी में जकड़ ली। उसे एक अनजानी सी घबराहट और तकलीफ महसूस हुई। फौरन घबरा कर उठी, उसकी नींद उड़ गई और वो नंगे पांव ही भागती गिरती फिरती कॉटेज से बाहर आई। बाहर का माहौल और खूनी मंजर देखकर उसकी दिल खराश और आसमान को चीर देने वाली चीखों ने उस सर्द रात को खामोश सुकूत को बुरी तरह से बिखेर दिया। जरान खून में लथपथ सड़क के बीचों बीच बेहिसो हरकत पड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और बर्फ का सफेद और पाकीज़ा रंग उसके माथे और सर से बहने वाले सुर्ख खून से तेजी से रंगीन हो रहा था। मेरा दीवानों और पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रोती हुई उसकी तरफ भागी। इस अचानक होने वाले एक्सीडेंट के बाद सुनसान और बर्फीली सड़क पर मेरा की दिल चीर देने वाली चीखी और रोने की आवाज़ें सुनकर कुछ मकामी लोग फौरन अपनी गाड़ियों घरों से निकलकर बाहर पहुंच गए। अस्पताल का ठंडा कॉरिडोर मेरा की सिसकी और भारी कदमों की आहट से गूंज रहा था। मकामी लोगों की मदद से जरान को इमरजेंसी में लाया गया तो मेरा की हालत पागलों जैसी थी। उसके कपड़े और हाथ जरूर के खून से सुर्ख हो चुके थे। कुछ ही देर में सिकंदर और निगत भी बदहवास वहां पहुंच गए। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरे जरान कहाँ है? निगत दहाड़ी मारते हुए आई और मेरा को देखकर वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरा, कुछ बोलो, मेरा बेटा कैसा है? उसे क्या हुआ है? सिकंदर ने कांपती आवाज में मेरा के कंधे से झोड़ते हुए पूछा। मेरा की जुबान जैसे तालू से चिपक गई। वो अंदर है। बस ये दो अल्फाज इंतहाई मुश्किल से उसके सूखे लबों से अदा हुए और वो खाली नजरों से आईसीयू के बंद दरवाजे को देखने लगी। निगत भी मुसलसल रो रही थी और सिकंदर उसे तसल्ली देने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जो चंद गेंडों की तवील और जानलेवा असियत के बाद मेन सर्जन थके हुए कदमों से बाहर आया। जरान की फैमिली कौन है? डॉक्टर ने सब पर नजरें दौड़ाते पूछा। हमें बताएं डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? सिकंदर ने बेताबी से आगे बढ़कर पूछा। देखें, हादसा बहुत शदीद था। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से खून बहुत बह चुका है। जान तो बच गई है, मगर मरीज गहरे कोमे में जा चुका है। अब उनका बचना सिर्फ मुआवजे पर मुनासिर है। डॉक्टर के अल्फाज पूरे खानदान पर बिजली बनकर गिरे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जरान, निगत ने सीना पीटते दिलखराश चीख मारी। मेरा के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। कोमा, ये लफ्ज उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बजने लगा। उसे कॉटेज की वो गर्म रात और जरान की वो खुमार आलूद मुस्कुराहट याद आने लगी। वो बेजान सी होकर अस्पताल के फर्श पर गिरी और उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बह निकला। शहीना जो वहीं मौजूद थी, उसे इंतहाई हकारत और नफरत से मिरा को देखा। ये सब तुम्हारी नहुसत है मिरा। तुमने उसे इस हाल तक पहुंचाया जब से तुम उसकी जिंदगी में आए, उसका सुकून छीन लिया। और आज रात भी तुम्हारी किसी जिद की वजह से वो तूफान में बाहर गया और मौत के मुंह में चला गया। शाहिना ने इंतहाई चुपते अंदाज में ताना दिया। मिरा ने उसकी जहरीली बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने घुटनों में सर्दी रोती रही। उसके अंदर एक वीरानी छा गई, मगर फिर उसने अपने आंसू साफ किए और शीशे के सवार मशीनों में घड़े सरान को देखा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी सरान। आपने मुझसे जो वादे किए हैं वो आपको पूरे करने होंगे। मैं आपको मौत के अंधेरों से वापस खींच लाऊंगी। मेरा ने दिल ही दिल में एक अटल फैसला किया। उसकी आंखों में अब आंसू की जगह एक अजीब सी चमक और साबित कदमी थी, जिस बात का ऐलान थी कि वो अपने प्यार के लिए हर मुश्किल से टकराने को तैयार है। उसी पर कॉरिडोर में मजीद कदमों की आहट उभरी। मेरा के वालिद खानदान, उसकी वालदा साजदा बेगम और छोटी बहन मिसाल बदहवासी के आलम में वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर शदीद खौफ और परेशानी आया थी। मेरी बच्ची, ये सब क्या हो गया? साजदा बेगम ने रोते हुए आगे बढ़ी और मेरा को अपने सीने से लगा लिया। मेरा जब तक खुद को मजबूत किए हुए थी, माँ की गले लगते ही दोबारा पूट पूट कर रो पड़ी। अम्मी, जरान अंदर है, वो मुझसे बात नहीं कर रहे। मेरा की आवाज सिसकियों में डूब गई। विशाल ने रोते हुए अपनी बड़ी बहन का कंधा थामा। आप हिम्मत रखें, भाईजान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप इस तरह टूट जाएंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा?
विशाल की आवाज़ में एक अजीब सी तसल्ली और अपनाए थे जिसने मेरा को थोड़ा हौसला दिया। वो जानते थे कि विशाल उसकी सिर्फ छोटी बहन ही नहीं, बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त और रास्ता भी है। इसी दौरान जारान की वालदा निकहत, जो अब तक सदमे से नढाल एक कुर्सी पर बैठी थी, मेरा और उसकी फैमिली को देखकर उनके अंदर का सारा गुबार फट पड़ा। वो तेज के आलम में उठी और सीधा साजदा बेगम के पास आई। ले जाओ साजदा, अपनी इस मनहूस बेटी को मेरी नजरों से दूर करो, ये खा के मेरे जवान बेटे को। निगहत की कड़वी और जहरीली आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंजी। साजदा बेगम ये सुनकर शदीद सदमे में आ गई। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? ये तो अल्लाह की तरफ से एक हादसा था, इसमें मेरी बच्ची का क्या कसूर है? साजदा बेगम ने दुख से अपनी बेटी का दिफा करना चाहा, मगर निगहत तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। कैसा हादसा साजदा? मैं तो शुरू से इस रिश्ते के लिए इतनी खुश नहीं थी, मगर सिकंदर की जिद के आगे हार गई थी। जब से इस लड़की का नाम मेरे बेटे के साथ जुड़ा है, उसका तो सुकून ही छिन गया है। और आज इसी की जिद की वजह से मेरा जरान एक तूफान में बह गया और मौत के मुंह में चला गया। ये लड़की हमारे लिए अजाब बनकर आई है। निगहत ने शदीद नफरत और गुस्से से मिरा को देखा। मिरा के दिल पर जैसे किसी ने आरे चला दिया। उसे तड़प कर सर उठाकर अपनी सास और ममानी की आंखों में देखते इंतहाई मजबूती से बोली, आपको कोई हक नहीं पहुंचता ममानी जान कि आप मुझे मेरे सरान से अलग करें। मैं उनकी मनकूवा हूँ, उनकी बीवी हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी और अपने शौहर की खिदमत करूंगी। मिरा की इस बेबाक और दो टोक बात पर निगहत मजीद सीखपा हो गई। तुम जैसी मनहूस लड़की को कोई जरूरत नहीं है मेरे बेटे को। तुम आज ही अपने पाप के साथ वापस जा रही हो। निगहत ने धमकी अमीज लहजे में कहा, मगर मिरा अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली। उसे अपने आंसू साफ के इंतहाई पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, जब तक जरान खुद अपने मुंह से मुझे जाने का नहीं कहेंगे, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कि मेरा आखिरी फैसला है। साजदा बेगम और कामरान अपनी बेटी की यह साबित कदमी देखकर हैरान रह गए, जबकि मिशाल ने मिराह का हाथ मजबूती से पकड़कर उसे खामोश रहने का इशारा किया ताकि बात मजीद न बिगड़े। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। जरान अभी तक कोमा में था और उसे अस्पताल में 1.5 महीना गुजर चुका था। जरान ने अपनी जात को बिल्कुल भुला दिया था। उसका दिन जरान के पास शुरू होता और रात उसी के बेड के सराहने कुर्सी पर बैठे बैठे जागते हुए गुजर जाती। अपने हाथों से जरान का चेहरा साफ करती, उसके बाल बनाती और घींटों उसका ठंडा हाथ पकड़े उसे वापस आने की इल्तिजाई करती। मगर पिछले कुछ दिनों से मिरा की अपनी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। उसे सुबह उठते ही शदीद चक्कर आते और मतली महसूस होती। वो दिन भर नडाल सी जरान के कदमों में बैठी रहती। एक रात जब वो अस्पताल के वॉशरूम में खड़ी शदीद मत्ती के बाद अपना चेहरा धो रही थी, तो अचानक उसे मरी के उस कॉटेज की वो बहुत सर्द और मदहोश कर देने वाली याद याद आ गई। जरान को वो दिल फरेब कहता और उसकी वो मखमूली आवाज मिरा के कानों में गूंजी, जब उसने पेट दर्द के बहाने पर कहा था कि ये दर्द तो बहुत छोटा है मेरी जान, 9 माह बाद होगा जो असल दर्द है। मिरा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे अपनी इस कैफियत और इन तब्दीलियों का मुकम्मल इतराक हो गया। उसे यकीन हो गया कि वो जरान के बच्चे की माँ बनने वाली है। एक लम्हे के लिए खुशी की एक अनोखी लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई, मगर अगले लम्हे एक खौफनाक अंदेशे उसके दिल को जकड़ गए। अगर निगहत और खानदान वाले को ये बात पता चल गई तो उसकी गिरती हुई सेहत का बहाना बनाकर उसे फौरन अस्पताल से घर भेज देंगे और उसे सरान से दूर कर देंगे। रुखसती ना होने की वजह से घर वालों का क्या रद्दमल होगा, ये सोच कर ही मिरा की रूह कांप गई। उसे फैसला किया कि वो अपनी इस तकलीफ को छुपाएगी। वो दर्द और चक्कर बर्दाश्त करती रही, मगर उसने अपनी जुबान से किसी को कुछ नहीं बताया। वो बस अपनी बड़ी सी चादर में खुद को और अपने वजूद में फैलने वाली उस कीमती जान को छुपाए जरा उनकी खदमत में मगन रहती। मजीद 1.5 महीना गुजर गया और जरान को अस्पताल में पूरे 3 महीने हो चुके थे। राह की हालत तक छुपाई नहीं छुप रही थी। उसका वजन बढ़ रहा था और चेहरे पर एक अजीब सी जर्दी छा गई थी। वो अक्सर खड़े खड़े चक्कर खाकर दीवार का सहारा लेने पर मजबूर हो जाती। एक दोपहर अस्पताल में सारा खानदान मौजूद था। सिकंदर, कामरान, साजदा बेगम, निखत और शाहीना, जो कि जरान की खालदा जात थी। अपने वालदन की वफात के बाद बचपन से ही उसी हवेली में उनके साथ पली बड़ी थी और जरान की वजाहत पर दिलो जान से फिदा थी। वो हमेशा से जरान की बीवी बनने के ख्वाब सजाए बैठी थी, मगर जरान के मिराज से निकाह ने उसके दिल में शदीद हसद की आग भड़का दी और उसे डसने की ताक में लगी रहती थी। सब
आईसीयू के बाहर खड़े थे। मेरा अंदर जरान के पास खड़ी उसके हाथ पर दवाई की मालिश कर रही थी। जब जब अचानक मेरा की आंखों के आगे गहरा अंधेरा छा गया। उसका सर पूरी ताकत से चकराया और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो जरान के बेड के पास ही एक जोरदार आवाज के साथ फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। शीशे के बाहर खड़े खानदान वालों में खुलबुली मच गई। साहिस्ता बेगम मिसाल चीखते हुए अंदर भागी। नर्सेज और डॉक्टर्स तो फौरन वहां पहुंच गए और उन्हें मिरार को उठाकर इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया। साहिस्ता बेगम रो रो कर पागल हो गई। मेरी बच्ची ने इस लड़के के पीछे अपनी जान ही निकाल दी है। दिन रात जाग कर इसकी ये हालत हो गई है। साहिस्ता बेगम ने निगत को सुनाते हुए कहा। निगत ने मुंह फेर लिया और शाहीना तंजिया मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद एक लेडी डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आई और उसने सबसे एक तफसीली नजर डाली और पूछा कि मरीजा की वालदा कौन है। तो साहिस्ता बेगम फौरन आगे बढ़ी और बोली, मैं हूँ। कैसी है मेरी बेटी, क्या हुआ ऐसे? तो लेडी डॉक्टर बोली, मुबारक हो, आपकी बेटी माँ बनने वाली और उनकी प्रेगनेंसी को तीसरा महीना चल चुका है। उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। डॉक्टर के अल्फाज ने कॉरिडोर में मौजूद हर शख्स की पैरों तले से जमीन खींच ली। साहिस्ता बेगम का चेहरा शर्म और सदमे से सुर्ख हो गया। उनके होंठ कांपने लगे। क्या, ये कैसे मुमकिन है? साहिस्ता बेगम की आवाज पूरी तरह लर्ज गई। डॉक्टर ने हतमी लहजे में जवाब दिया, ये मेडिकल रिपोर्ट्स है, हम अल्ट्रासाउंड कर चुके हैं, आपकी बेटी 3 माह की हामला है। ये कहकर डॉक्टर डॉक्टर वहां से जा चुकी थी, मगर पीछे क्यामत खेज तूफान खड़ा हो गया। निगत तो जैसे पागल हो गई। इस बेहिया लड़की ने हमारे खानदानी वकार और इज्जत को खाक में मिला दिया। मैं तो पहले कहती थी ये लड़की ठीक नहीं है, मगर मेरी कुछ सुनता ही नहीं है। निगत ने सीने को पीटते हुए जहर उगला। शाहीना ने सुनहरी मौका का पूरा फायदा उठाया और चेहरे पर एक जहरीली और गलीज मुस्कुराहट सजाकर आगे बढ़ी। देखा, ये लड़की किसी और के साथ मुंह काला करके आई है। जरान भाई तो 3 माह से कोमा में है, उनकी तो अभी रुखसती भी नहीं हुई, तो ये नाजायज बच्चा किसका है? शाहीना के इस घटिया और गलीज इल्जाम पर उसी वक्त होश में आती मिरहा, चूंकि दरवाजे पर खड़ी थी, उसने तड़प कर सर उठाया और रोते हुए बोली, बकवास बंद करो शाहीना, अपनी गंदी जुबान को लगाम दो। ये मेरे जरान का ही बच्चा है, मैं पाक दामन हूँ। मिरहा रोते हुए भाग कर अपनी माँ के पास आई। अम्मी, आप मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने इसके इस कॉटेज में उस रात हम दोनों, जरान ने मुझे अपनाया था। मिरहा साजिदा बेगम के कदमों में गिरकर गिरगिरा रही थी, मगर साजिदा बेगम और कामरान शर्मिंदगी और सदमे से सर झुकाए खड़े थे। उनके पास अपनी बेटी के दिफा में बोलने के लिए कोई लफ्ज नहीं था। वो तो खुद इस हकीकत को हजम नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बाहिया बेटी ने ये कदम कैसे उठा लिया। सिकंदर ने गुस्से से आगे बढ़कर साजिदा बेगम को देखा। साजिदा, अपनी इस गलीज बेटे को अभी और इसी वक्त अस्पताल से और हमारी जिंदगी से निकाल कर ले जाओ। आज के बाद इस लड़की का यहाँ कोई काम नहीं है। सिकंदर ने दहाड़ते हुए कहा। निखत ने भी आगे बढ़कर मिरहा को बाजू से पकड़ा और उसे धक्का दिया। निकल जाओ यहाँ से, तुम जैसी गंदी लड़की का मेरी पकीजा बेटे की जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है। निगहत ने नफरत से कहा, मगर मिरहा गिरने के बजाय फौरन उठी। उसने अपने आंसू साफ किए और इंतहाई साबित कदमी और अजीब सी ताकत के साथ उन सबकी आंखों में देखकर बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मा नहीं जान, ये बच्चा जरान की निशानी है, उनकी अमानत है, और मैं इस हालत में उन्हें तनहा नहीं छोड़ सकती। आप सब मुझे जो चाहेंगे, मुझे मारे पीटे, मगर मैं अपने शौहर को छोड़कर एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। मिरहा का ये डटा हुआ और मजबूत रूप देखकर सब दंग रह गए। साजिदा बेगम ने रोते हुए मिरहा को बाजू से खींचा। चल चल मेरे साथ लड़की, तूने हमारी नाक कटवा दी है। साजिदा बेगम उसे जबरदस्ती ले जाना चाहती थी, मगर मिरहा ने सख्ती से अपना बाजू छुड़ाया और भागकर आईसीयू के दरवाजे के आगे खड़ी हो गई और दोनों हाथ फैला दिए। मैं अपने जरान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कोई मुझे यहाँ से नहीं हटा सकता। मिरहा की इस दीवानगी और पागलपन को देखकर डॉक्टर्स ने भी मुदाखलत की और सबको वहां से जाने का कहा, ताकि अस्पताल का माहौल खराब ना हो। इस क़यामत खेज दिन के बाद घरवालों ने मिरहा से मुकम्मल बाइकआउट कर दिया। साजिदा बेगम और कामरान भी उससे और शर्मिंदगी की वजह से अस्पताल कम ही आते, मगर मिरहा ने उन सब दानों, जहरीली बातों और नफरत को अपनी ताकत बना लिया था। वो पहले से ज्यादा लगन और मोहब्बत के साथ जरान की खदमत करती। वो अपने उभरते हुए पेट पर हाथ रखकर गेंटों जरान से बातें करती। आपको हमारे इस बच्चे के लिए वापस आना होगा जरान,
آپ کو مجھ پر لگنے والے ان تمام داغوں کو دھونا ہوگا۔ میرا روتے उसका हाथ चूमती। वक्त मजीद तेजी से गुजरा और 6 महीने पूरे होने को आ गए। इन आखिरी 3 महीनों में मिरा की अंतिम खदमत और उसकी सच्ची दुआओं ने बाकी मुआवजा कर दिखाया। जरान की हालत में तेजी से बेहतरी आने लगी। उसके दिमाग की सूजन कम हो गई और उसकी सांसें कदरे नॉर्मल होने लगी। डॉक्टर ने उसकी इस शानदार रिकवरी पर हैरत का इजहार किया और फैसला किया उसे अस्पताल से घर शिफ्ट कर दिया जाए, जहाँ मशीनों और नर्सेस की निगरानी में उसका बकिया इलाज जारी रह जाएगा। मिरा के लिए खबर किसी बड़ी ईद से कम नहीं थी। घर शिफ्ट होने के बाद भी मिरा ने जरान का बिस्तर नहीं छोड़ा। वो दिन रात उसके सराहने बैठी रहती, जबकि शाहीना और निगाह दूर से खड़ी जलती भुनती रहती। मगर जरान की हालत बेहतर होने के बजाय वो मिरा को कुछ कह नहीं पाती थी। एक इंतहाई पुरसुकून और रोशन सुबह मिरा हस्बे मामूल जरान के पास बैठी तिलावत कर रही थी। उसकी नजरें कुरान पाक के मुक़द्दस सफ़हात पर जमी थी। अचानक उसने महसूस किया कि जरान की उंगलियों में जो उसके हाथ में कैद है उस पर हल्की सी जंबिश हुई है। मिरा ने चौंक कर फौरन जरान की तरफ देखा। उसके दिल की धड़कनें सीने में बेकाबू हो गई। जरान की बंद और भारी पलकें आहिस्ता आहिस्ता कांप रही थी। फिर 6 माह की तवील अजियतनाक और तारीक अरसे के बाद उसने धीरे से अपनी स्याह खुमारुलूद मगर धीमी थकी हुई आंखें खोली। मिरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो रोते हुए जरान के चेहरे पर झुकी। जरान, आपको होश आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मिरा ने फरते जज्बात में रोते हुए जरान का माथा चूमा। जरान ने शदीद उलझन भरी और मुकम्मल और बिल्कुल खाली नजरों से मिरा को देखा और फिर अपने आसपास के माहौल को अपने कमरे की समझने की कोशिश की। तुम रो क्यों रही हो? जरान की आवाज बहुत कमजोर खुरदरी थी, मगर मिरा के लिए आवाज किसी खूबसूरत राग से कम नहीं थी। आपका एक्सीडेंट हो गया था ना जरान? हम मरी में थे, कॉटेज के बाएं बर्फबारी में एक गाड़ी ने आपको टक्कर मारी थी। मिरा ने जल्दी जल्दी खुशी से बताते हुए उसे सब याद दिलाने की कोशिश की, मगर जरान की आंखों में शदीद उलझन और यकदम एक अजीब सी बेजारी तैर गई। मरी? कॉटेज? मुझे कुछ याद नहीं। तुम डॉक्टर को बुलाओ। जरान ने इंतहाई सर्द महरी और अजनबियत के साथ कहा। मिरा के तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वो भागती हुई डॉक्टर को बुलाने गई, मगर उसका दिल किसी अनजाने और भयानक खौफ से बुरी तरह से कांप रहा था। डॉक्टर की पूरी टीम जरान के कमरे में पहुंची और उसका तफसीली मुआयना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सिकंदर, निगहत, शहीना और साहिता बेगम समेत खानदान के दीगर अफराद भी बदहवासी की हालत में वहां जमा हो गए। डॉक्टर ने जरान का चेकअप करने के बाद एक गहरा सांस लिया और सबकी तरफ देखते हुए इंतहाई संजीदगी से बताया। जरान को होश आ गया। उनकी जिस्मानी हालत बहुत खतरे से बाहर है, मगर सर पर लगने वाली गहरी चोट की वजह से पिछले कुछ अरसे की याददाश्त जज्वी तौर पर खो चुके हैं। इनको ज़हनी दबाव से बचाए हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता इनको सब याद आने लगे। लेकिन शहीना और निकल तो चाहती ही नहीं थी कि उसे कुछ भी मिरा के बारे में याद आए। डॉक्टर की हतमी बात मिरा के दिल पर किसी तेज धार खंजर की तरह चली। वो दरवाजे की चौखट पकड़े बेजान सी खड़ी थी और इसकी आंखों से आंसू का एक नया सैलाब बह निकला। सब कुछ भूल गए। उमरी की बर्फानी रात, वो गुर्बत की मदहोश लम्हे, वो मोहब्बत की जुनूनी बातें, सब कुछ उनके जहन से मिट चुका था। मिरा का दम घुटने लगा। दूसरी तरफ निगाह और शाइना के चेहरों पर तो जैसे एकदम एक शैतानी और जहरीली मुस्कुराहट छा गई। अगले दिन शाइना चेहरे पर एक मकाराना हमदर्दी सजाकर सैरान के बेड के करीब आई। सैरान पाई, आपको होश आ गया? हम सब आपके लिए कितने परेशान थे। अगर आपको याद है आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ये लड़की आपके साथ थी। शाइना ने जानबूझकर जरान के कमजोर जहन को उलझाने की कोशिश की। सरान ने माथे पर हाथ रखते उसे देखा। मुझे कुछ याद नहीं है, बस इतना याद है कि हम सबका मरी जाने का प्रोग्राम बन रहा था। अब पता नहीं क्या हुआ। जरा उनकी इस हालत ने जैसे शाहीना और निगहत को एक नया और खतरनाक हथियार दे दिया था। निगहत ने फौरन आगे बढ़कर अपने बेटे का माथा चूमा और फिर किचन से आती मीरा को देखा। बेटा, तुम तो कोमा में थे। हम मौत जिंदगी की सख्त कश्मकश में मुब्तला थे, मगर इस बेहया लड़की ने तुम्हारे पीछे हमारे खानदानी वकार और इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। निगहत की जहरीली आवाज पूरे कमरे में गूंजी। सरान ने उलझन भरी नजरों से अपनी माँ को देखा। क्या मतलब आपका अम्मी जान? क्या किया मीरा ने? जरान की खुमार आलूद मगर सख्त नजरें बेसख्ता मीरा की तरफ रुकी, जो एक बड़ी सी चादर में अपने उभरे हुए पेट को छुपाए
ज़ारो की तार हो रही थी। शहीना ने मौका पाकर फौरन अपना जहर उगलना शुरू किया। सैलान भाई, आप तो पिछले 6 माह से बेहोश पड़े हैं, मगर ये लड़की माँ बनने वाली है। पता नहीं कहाँ गुल खिलाया है। ये तो महीनों से आपकी खदमत का झूठा ड्रामा रचाकर हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही थी। शहीना की इस गलीज और शर्मनाक इल्जाम पर कमरे में सन्नाटा छा गया। मरहान ने तरफ कर सर उठाया और रोते हुए भागकर जरान के बेड के पास और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थामे जकड़ लिया। सरान, खुदारा, कुछ तो बोले। इन सबको बताया कि मरी के उस कॉटेज में उस रात हम दोनों एक हो गए थे। आपने मुझ पर अपना हक जताया था, आप मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा सरान के हाथ पर अपने गर्म आंसू गिराते हुए गिरा रहे थे। सरान का दिमाग अब साए साए कर रहा था। उसे मरी का कोई वाक्य, कोई लम्स याद नहीं आ रहा था। मेरा की रोती हुई सुर्ख आंखें, उसकी तरफ उसका बेगुनाह चेहरा, उसके दिल पर हथौड़े बरसा रहा था। निगहते आगे बढ़कर मीरा का बाजू सख्ती से पकड़ा। चलो निकलो यहाँ से, अब तो मेरे बेटे को होश आ गया है। अब तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी और ड्रामेबाजी की कोई जरूरत नहीं है। निगहत उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर निकालना चाहती थी, मगर अचानक जरान की गर्जदार और इंतहाई रूपदार आवाज पूरे कमरे में एक बम की तरह गूंजी। खबरदार, जो किसी ने मेरी बीवी को हाथ पे लगाया। जरान की इस खौफनाक और पुराने रूप को देखकर सबके कदम वहीं रुक गए। जरान ने अपना हाथ से ड्रिप की सुई खींच कर निकाली और बेड से नीचे उतर आया। उसके सर में शदीद दर्द था, मगर उसने आगे बढ़कर फर्श पर गिरी रोती हुई मिराह का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे बहुत नरमी और इज्जत से अपना साथ खड़ा किया। उसे मिराह के चेहरे पर आंसू अपनी अंगूठे से साफ किए और फिर इंतहाई सख्त और काटदार नजरों से शहीना और निगहत को देखा। अपनी इस जहरीली जुबान को लगाम दो शहीना, वरना मैं वो कोशिश करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। जरान की आवाज में वो पुरानी दहाड़ और गुस्सा था जिससे सारा घर कांपता था। अम्मी जान, आप भी सुन ले, मेरा मेरी इज्जत है, मेरी बीवी है, मेरी मनकुआ है, और उसके पेट में पलने वाला बच्चा मेरा अपना जायज खून है। जरान ने एक एक लफ्ज चबा कर अदा किया। सब लोग हैरत और बेयकीनी से फटी आंखों के साथ जरान को देख रहे थे। मगर बेटा, तुम्हें तो कुछ याद नहीं, फिर तुम इस लड़की की बात पर कैसे यकीन कर सकते हो? निगहत ने हकलाते हुए घबरा कर पूछा। मुझे वो रात याद है, हो या ना हो अम्मी जान, मगर मुझे अपनी बीवी की पाकीज़गी और उसकी वफादारी पर अंधा यकीन है। जरान ने मिराह के हाथ पर अपनी गिरफ्त और भी मजबूत कर ली। मिराह हैरत, खुशी और शुक्रगुजारी के मिले जुले जज्बात के साथ जरान को दिख रही थी, जिसने याददाश्त खोने के बावजूद आज सबके सामने उसका मान रख लिया था। उस पर कोई आँच नहीं आने दी थी। मैं आज और अपनी मिराह की रुखसती करके उसे बकायदा अपनी बीवी के दर्जे पर अपने कमरे में रखूंगा। और आज के बाद अगर किसी ने मेरी बीवी या मेरे बच्चे पर उंगली उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जरान ने खत्मई और अटल फैसला सुनाते सबको खामोश करवा दिया। जरान का कमरा बहुत बड़ा और शानदार था, मगर आज वो कमरा मेरा को एक नई और अनजानी सी दुनिया लग रहा था। जरान ने उसे कमरे के बीचों बीच रखे नरम सोफे पर बिठाया और खुद उसके कदमों में घुटनों के बल बैठ गया। मेरा घबरा कर पीछे हटी, मगर जरान ने बहुत नरमी से उसके दोनों हाथ अपने मजबूत और गर्म हाथों में थाम लिए। मुझे माफ कर दो मेरा। जरान की आवाज में एक अजीब सा दुख और पछतावा था। मीरा ने हैरत से उसे देखा। आप क्यों माफी मांग रहे हैं जरान? आपका तो कोई कसूर नहीं। मीरा की आवाज अभी भी सिसकियों की वजह से कांप रही थी। जरान ने उसके हाथों की पुश्त को बारी बारी चुमा और इंतहाई जज्बाती लहजे में बोला, मेरा कसूर ये है कि मैं वो रात भूल गया हूँ जिसकी वजह से तुम्हें इतनी अजियत और रुसवाई उठानी पड़ी। तुमने 6 माह जिस तरह मेरी खिदमत की और मेरे घर वालों के ताने सहे, मैं उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकता। मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मेरा कि मैं तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगा, चाहे मुझे कुछ याद हो या ना हो। तुम मेरी बीवी हो और मेरे इस बच्चे की माँ हो। सरन का ये हमदर्दाना और मुहाफिजाना अंदाज देखकर मेरा के जब्त के सारे बंधन टूट गए। वो उसके गले लगकर जारों के दार रोने लगी। जरान ने उसे अपने बाजू को मजबूत और महफूज हिसार में छुपा लिया। वो बहुत प्यार से उसके लंबे घने बालों में उंगलियां फेरते उसे तसल्ली देने लगा। वक्त गुजरने के साथ उनके रिश्ते में एक नई और इंतहाई खूबसूरत बॉन्डिंग बनना शुरू हो चुकी थी। मेरा की प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था और इसका वजन काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो अक्सर थकन का शिकार रहती। जरान उसका ख्याल रखने लगा था। एक रात मीरा के पैरों में शदीद दर्द और सूजन थी और वो बेबसी से बिस्तर पर बैठी रो रही थी।
जरान जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था फौरन उठा और उसके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो? जरान ने शदीद परेशानी से पूछा। मेरे पैरों में बहुत दर्द है और सूजन भी हो गई है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मिरान ने बच्चों की तरह सिसकते हुए कहा। जरान ने मुस्कुराकर उसके आंसू साफ किए और खुद बैठकर उसके पैरों की तरफ बैठ गया। उसे मीरा के सूजे हुए नरम और नाजुक पैरों को अपनी गोद में रखा और बहुत नरमी से उन्हें दबाना शुरू कर दिया। मीरा ने शर्मा कर अपने पैर पीछे खींचने जाए। अब क्या कर रहे हैं जरान, मुझे अच्छा नहीं लगा। मीरा ने घबरा कर कहा, मगर जरान ने उसके पैरों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। चुपचाप लेटी रहो बेगम, और मुझसे कोई बहस ना करो। तुम मेरे बच्चे को दुनिया में लाने के लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? जरान की इस मोहब्बत भरी डांट और उसके लफ्ज की गर्माहट ने मीरा के दिल की धड़कनों को बेकाबू कर दिया। वो खामोशी से तकिए पर सरक कर जरान को देखने लगी, जो कि पूरी तवज्जो और मोहब्बत से उसके पैर दबा रहा था। उस रात जरान को शिद्दत से एहसास हुआ कि वो याददाश्त खोने के बावजूद उस लड़की की मासूमियत और वफादारी के शहर में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुका था। कुछ दिन मजीद गुजर गए और जरान एक शाम ऑफिस के काम से अपना लैपटॉप चेक कर रहा था। उसे कुछ पुरानी फाइल्स तलाश करनी थी कि अचानक उसकी नज़र एक हिडन फोल्डर्स पर पड़ी, जिस पर मरी ट्रिप लिखा था। जरान के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसे कांपते हाथों से माउस का क्लिक दबाया और फोल्डर खोल लिया। फोल्डर के अंदर बहुत सी तस्वीर और कुछ छोटी छोटी वीडियोस थी जो उसने मिराह ने मरी की उस ट्रिप पर बनाई थी। जरान एक एक करके वो तस्वीरें देखने लगा। माल रोड पर मिराह का हाथ पकड़े चलने की तस्वीर, आग के गिर्द बैठे मिराह को छुप छुप कर देखने की तस्वीर, और फिर वो तस्वीरें सामने आई जो कॉटेज में ली गई थी। तस्वीरों में मिराह दरन के चूड़े सीने में सर के सुकून की नींद सो रही थी, और जरान इंतहाई मोहब्बत भरी और खुमार आलूद मुस्कुराहट के साथ सेल्फी ले रहा था। उन तस्वीरों को देखते जरान की दिमाग की रगें पूरी तरह से फटी और सर्द और बर्फीली रात की सारी यादें खौफनाक तूफान की तरह उसके जहन में घूमने लगी। उसे मिराह का सर्दी से कांपना, उसके नीले पड़ते होंठ उसे गर्माहट देने के लिए अपने हिसाब में लेना, और फिर वो तमाम मोहब्बत भरे और दीवाना वाले लम्हात एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगे। उसे मिराह का वो सिसकता हुआ जुमला याद आ गया जब उसने कहा था कि आपने मेरे साथ सब कुछ कर लिया। फिर वो सरगोशी भी याद आ गई जब उसने मिराह को 9 माह बाद की बात कहकर छेड़ा था। जरान के हाथ से माउस छूट गया। उसकी आंखों से पछतावे, दर्द और बेपनाह जुनूनी मोहब्बत के आंसू बह निकले। उसे याद आ गया कि उसने अपनी इस मासूम सी जान को कितनी तकलीफ और कितनी अजियत से गुजारा था, जिसे वो किसी फूल की तरह संभाल कर रखना चाहता था। जरान दीवानों की तरह अपना लैपटॉप वहीं छोड़कर कमरे से बाहर भागा। वो मिराह को ढूंढ रहा था। मिराह उस वक्त बालकनी में खड़ी बाहर होने वाली हल्की हल्की बारिश को देख रही थी, और उसका चेहरा इंतहाई उदास और सोचों में गुम था। जरान ने पीछे से जाकर उसे अपने मजबूत और चौड़े बाजुओं की बाहों में सख्ती से जकड़ लिया। उसके कंधे पर सर रखकर जारों की तार रोने लगा। मेरा इस अचानक हमले और जरान के यूं रोने पर बुरी तरह से घबरा गई। जरान, क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा ने परेशानी से पलटना चाहा, मगर जरान ने उसे खुद में और सख्ती से खींच लिया और रोते उसके कान में सरगोशी की। मुझे माफ कर दो मेरी जान, मैं सब कुछ भूल गया था। मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ अकेले सहने दी। मैं कितना बुरा हूँ मेरा, मुझे बुरा याद आ गई है। मेरा के अंदर अल्फाज ने मेरा जरून के अल्फाज ने मेरा के कदमों को वहीं जमा दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जरान ने उसकी गर्दन पर अपने गर्म लब रखे। मेरा हैरत, खुशी और एक बेयकीनी के आलम में पलटी तो जरान ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी आंखों को चुमा। बारिश की उन ठंडी बूंदों में भीगते हुए उन दोनों ने एक बेहद जज्बाती लम्हा शेयर किया। जरान की यादें वापस आ चुकी थी और उसकी वो जुनूनी मोहब्बत, वो पॉजेसिव पन दोबारा उसकी आंखों में लौट आया था। वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत देर तक बारिश में रोते रहे, जहां उनकी इन बॉन्डिंग के लिए हमेशा अटूट हो गई थी, और सारी दुनिया, तमाम शिकवे उस बारिश के पानी में हमेशा के लिए धुल गए थे। और जरान ने बहुत प्यार से मिरा का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी भीगी हुई पलकों को चूमा। चलो अंदर चले मेरी जान, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी और हमारे इस नन्हे मेहमान को भी ठंड लग जाएगी। जहाँ अंदर बैठे, अंदर चलते हैं।
जरान ने इंतहाई नरमी से सरगोश की और मेरा का हाथ थामे उसे लेकर नीचे हॉल में आ गया, जहाँ घर के तमाम बड़े अफराद मौजूद थे। जरान ने इंतहाई पुरसुकून मगर हतमी अंदाज में सबको मुखातिब किया। अम्मी जान, अब्बू जान, मुझे अपना मरी का ट्रिप और मेरा के साथ गुजारा हुआ वो एक एक पल याद आ गया। मेरा, मेरी बीवी और हम उस रात मुकम्मल तौर पर एक हो गए थे। मुझे अफसोस है कि मेरी याददाश्त जाने की वजह से आप लोगों ने मेरा के साथ काफ़ी सर्द और सख्त रवैया रखा और उसे तनहा छोड़ दिया। मगर अब मुझे सब याद आ गया और मैं ठीक हो गया। आप सब लोग सच्चाई जान चुके हैं, तो मुझे यकीन है कि अब मेरी बीवी को किसी के कड़वे रवैये का सामना नहीं करना पड़ेगा। जरान की इस वाज़िया और दो टोक बात पर सिकंदर निगहत को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। निगहत ने आगे बढ़कर मीरा को गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, हालात ही ऐसे बन गए थे कि हम उलझन का शिकार हो गए थे। मैं शर्मिंदा हूँ। अब तुम हमारे घर की रौनक हो, इस घर की असल वारिस हो। उनकी आंखों में आंसू थे। सिकंदर ने मिरा के सर पर प्यार दिया। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी आया थी, मगर वो कुछ नहीं बोले। जरा ने अपनी वालिद का हाथ थामे इंतहाई संजीदगी और नदामत से कहा, अब्बू जान, हमें भी एहसास हो गया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिस बात की रूह में बहकर और रुखसती का सही वक्त आने से पहले जो कदम हमने उठाया, उसे मिरा को कैसी कैसी अजियत से उससे गुजारा। अगर हम अपने जज्बात पर काबू रखते और आप लोगों की मर्जी और सही वक्त का इंतजार करते तो शायद शायद मेरी बीवी को इतनी बड़ी और घुटन आजमाइश से ना गुजरना पड़ता। जल्दबाजी ने हमें बहुत बड़ा सबक दिया है। मिरा ने भी रोते हुए साजिदा बेगम को गले लगा लिया। अम्मी, मैंने भी सीख लिया है कि बड़ों की मर्जी, उनकी दुआओं के बिना रिश्ते अधूरे रहते हैं। जिस बात पर काबू रखना और मुकर्ररा वक्त का इंतजार करना एक खानदान में इज्जत और प्यार कायम रखता है। हम आइंदा कभी जिस बात में आकर ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जिससे आप लोगों का सर झुके। घर के बड़ों ने उनकी समझदारी और एहसास पर उन्हें दिल से माफ कर दिया और गले लगा लिया। शहीना जो ये सब देख रही थी, उसे अपनी खामी और अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसे महसूस किया कि इस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं और वो जरान और मिराह के बीच कभी नहीं आ सकती। खुशकिस्मती से उसे इसी हफ्ते लंदन की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स के लिए और स्कॉलरशिप की ऑफर भी आ चुकी थी। शहीना ने मिराह से माफ़ी मांगी और सबके सामने अपनी इस खुशखबरी का ऐलान किया और कहा कि वो कल ही अपनी पढ़ाई के लिए लंदन रवाना हो रही है। जरान और मिराह ने मुस्कुराकर उसे मुबारकबाद दी और घर का माहौल यकदम एक इंतहाई खुशगवार और जज्बाती कैफियत में बदल गया। वक्त बहुत तेजी से और इंतहाई खूबसूरती से गुजरने लगा। मिराह की प्रेगनेंसी का 9वां और आखिरी महीना शुरू हो गया। उसका वजन काफ़ी बढ़ गया था। वो अब चलने फिरने में शदीद दुश्वारी महसूस करती थी। वजन बढ़ने और हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से मिराह का मिजाज काफ़ी चिड़चिड़ा और ज़िद्दी हो गया था। वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर रोने लगती और जरान से रूठ जाती। मगर जरान इन तमाम नखरों और गुस्से को इंतहाई मोहब्बत, सब्र और इंतहाई दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ बर्दाश्त करता। वो जानता था कि मेरा उसके बच्चे को दुनिया में लाने के लिए कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। एक रात मेरा शीशे के सामने खड़ी अपना फूला हुआ और मोटा वजूद देखकर सारों की तार हो रही थी। जरान जो भी ऑफिस से वापस आया था उसे यूं रोते देख घबरा गया और जल्दी से उसके पास आ। क्या हुआ है मेरी जान, रो क्यों रही हो? कि दर्द हो रहा है क्या? जरान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बेताबी से पूछा। मेरा ने उसे पीछे किया और सिसकती बोली, देखो जरान, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। अब आपको मुझ पर प्यार नहीं आता ना? मेरा की इस बेतुकी बात पर जरान ने एक दिलकश कहता लगा और उसे नरमी से अपनी बाहों में खींच लिया। तुम पागल हो गई हो क्या मेरा? तुम इस हालत में मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत और दिलकश औरत लगती हो। तुम्हारे चेहरे का ये नूर और ये तब्दीलियां मेरी इस बच्चे की वजह से है जो तुम दुनिया में लाने वाली हो। जरा ने इंतहाई मोहब्बत से उसे समझाया था, जिससे मेरा का सारा गुस्सा लम्हों में हवा हो गया और वो शर्मा कर जरान के सीने में चुप गई। जरान उसे एहतियात से बेड तक लेकर आया। तुम बस आराम करो बेगम, और ये रोना धोना तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगले दिन जरान ने मिरा का मूड ठीक करने के लिए, उसे खुश करने के लिए एक खास मंसूबा बनाया। उसे दोपहर को मिरा को तैयार होने का कहा था और उसे लेकर शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल गया। मिरा ने हैरत से सरान को देखा। हम यहाँ क्यों आए? सरान, मेरी तो चलने की हिम्मत भी नहीं है। निरान ने थकावट से कहा। सरान ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। आज हम अपने आने वाले मेहमान के लिए शॉपिंग करेंगे और तुम्हें कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, और मैं सब करूँगा, तुम बस पसंद करना।
ज़रान उसे बच्चों की एक इंतहाई शानदार स्टोर में ले गया, जहाँ छोटे-छोटे कपड़े, नरम खिलौने, खूबसूरत जूते सजे थे। मीरा की आंखों में खुशी की एक चमक आ गई। वो दोनों मिलकर नन्हे-नन्हे सूटों में छोटी-छोटी जुराबें और खूबसूरत खिलौने पसंद करने लगे। सना एक छोटा-सा नीला सूट उठाकर मीरा को दिखाता बोला, "बेगम, ये कैसा रहेगा हमारे शहज़ादे के लिए?" मीरा ने मुस्कुराकर उसे देखा। "अगर बेटी हुई तो?" ज़रा ने फौरन एक गुलाबी फ्रॉक ढाली। "तो हमारी शहज़ादी ये पहनेगी?" ज़रान के इस मासूम और पुरजोश अंदाज से मीरा के दिल को मवा लिया। वो सारा दिन ज़रान के साथ शॉपिंग करती रही और ज़रान उसका हाथ थामे से हर दुकान पर ले जाता। वो कभी उसे बैठने का कहता, कभी उसके लिए जूस लेकर आता। ज़रान की इस बेपनाह तवज्जो और ख्याल ने मीरा की सारी थकन उतार दी। शॉपिंग के बाद ज़रान उसे घर ले आया, मगर सरप्राइज भी बाकी था। ज़रान ने घर के पिछले लॉन को इंतहाई खूबसूरती से परियों की रोशनियों और ताज़ा फूलों से सजा रखा था। बीच में एक छोटी सी मेज रखी हुई थी, जिस पर मीरा के पसंदीदा खाने सजे थे। ज़रान ने मीरा को कुर्सी पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठ गया। ये सब क्या है ज़रान? मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। ज़रान ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराकर बोला, ये उस खूबसूरत औरत के लिए मेरा प्यार है, जो मेरी जिंदगी को मुकम्मल करने जा रही है और जिसने मेरे लिए इतना कुछ सहा मगर साबित कदम रही। मैं जानता हूँ तुम तकलीफ में हो, मगर मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। जरा ने अपने हाथों से मीरा को खाना खिलाया और उसे एक बहुत ही खूबसूरत हीरे का लॉकेट पहनाया, जिस पर उन दोनों के नाम के पहले हरूफ गंदा थे। मीरा ने लॉकेट को छुआ और जरान की आंखों में देखते बोली, अब दुनिया की सबसे अच्छी शौहर है जरान, मुझे अभी किसी चीज का डर नहीं है। जरान ने मुस्कुराकर उसके हाथों की पुष्ट को चूमा और ये मोहब्बत भरा और पुरसुकून डिनर मीरा की तमाम थकन और उदासी को मिटा गया। उसी रात के पिछले पहर अचानक मीरा की दर्दनाक आवाज से जरान की आंख खुली। मीरा पेट पकड़कर बैठी थी और वो दर्द से बुरी तरह से तड़प रही थी। जरान के लिए जैसे होश उड़ गए। वो फौरन बेड से छलांग लगाकर खड़ा हुआ। मेरा दर्द शुरू हो गया क्या? जरान के हाथ पांव फूल गए थे। उसने जल्दी से मीरा को एक बड़ी सी चादर में लपेटा और उसे अपने मजबूत बाजू में उठाकर कमरे से बाहर भागा। सिकंदर और निखत भी मीरा की आवाज सुनकर अपने कमरों से बाहर आ गए। जरान उसे फौरन अस्पताल ले जाओ, हम दोनों गाड़ी में आते हैं, सिकंदर ने जल्दी से कहा। जरान ने मीरा को गाड़ी में पिछली सीट पर लेटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी हवा के दोष पर उड़ा दी। पूरे रास्ते मीरा दर्द से कराती रही और जरान का दिल कटता रहा। वो बार बार पीछे मुड़कर उसे देखता और बहुत हिम्मत दिलाता, बर्दाश्त करो मेरी जान, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, अल्लाह सब ठीक कर देगा। जरान की अपनी आंखों से बेबसी के आंसू बह रहे थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स और नर्सेस ने फौरन मीरा को स्ट्रेचर पर डाला, उसे लेबर रूम की तरफ ले गए। जरान लेबर रूम के बंद दरवाजे के बाहर खड़ा बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसकी सांसें फूली हुई थी और वो मुसलसल अपने रब के हुजूर मीरा की सलामती और जिंदगी की दुआ मांग रहा था। या अल्लाह, मेरी मीरा को कुछ ना हो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, उसे और मेरे बच्चे को सलामत रखना। जरान अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा रोते हुए गिर गिरा रहा था। सिकंदर, निगत, साजदा बेगम और कामरान और मिशाल भी वहां पहुंच चुके थे और वो जरान को तसल्ली दे रहे थे। बलाखिर वो घुटन इंतजार खत्म हुआ और लेबर रूम के अंदर से एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज गूंजी। जरान के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में शुक्राने के बेपनाह आंसू निकले। उसे दोनों हाथ उठाकर अपने रब का शुक्र अदा किया और कुछ ही देर बाद लेबर रूम का दरवाजा खुला और लेडी डॉक्टर मुस्कुराते बाहर आई। मुबारक हो जरान साहब, आपके यहाँ बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा सेहतमंद बेटा पैदा हुआ है और आपकी बेगम भी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की इस खुशखबरी ने जरान की दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल दी। वो खुशी से दीवाना हो गया। उसे डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और इजाजत मिलती फौरन कमरे के अंदर भागा। मेरा थकन से चूर मगर इंतहाई पुरसुकून और दिलकश मुस्कुराहट के साथ बेड पर लेटी थी और उसके पहलू में एक नन्हा सा फरिश्ता सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था। जरान के कदम भारी हो गए थे। वो धीरे धीरे चलता बेड के पास आया और घुटनों के बल बैठकर उसने सबसे पहले मेरा के माथे पर अकीदत भरा बोसा दिया। तुमने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया मेरा। जरान की आवाज रोते हुए भराई हुई थी। मेरा ने मुस्कुराकर अपना हाथ जरान के गाल पर रखा। जरान ने कपकपाते हाथों से उस नन्हे वजूद को अपनी गोद में लिया। उसे यूं लग रहा था जैसे उसने दुनिया की सारी दौलत समेट ली हो। उस बच्चे की शक्ल बिल्कुल जरान जैसी थी,
ज़रा ने उसके कान में इंतहाई मोहब्बत और अकीदत से अज़ान दी और उसे वापस मिराह के पहलू में लिटा दिया। उसने मिराह का हाथ अपने दोनों हाथों में मजबूती से थाम लिया था। हमारी ये मोहब्बत, हमारा ये सफ़र बहुत घुटन था मेरी जान, मगर आज इस नन्हे फरिश्ते के आने से हमारे सारे दुख हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ मेरा, और ये मोहब्बत हमारे बेटे के साथ और भी हसीन हो जाएगी। जरान के इन अल्फाज ने मेरा के दिल को मुकम्मल सुकून और सरशारी से भर दिया था। उन दोनों ने उस बच्चे का नाम जाविया रखा और यूं उनकी जिंदगी में खुशियों का एक नया और खूबसूरत बाब शुरू हो गया। 3 साल का तवील और खूबसूरत अरसा गुजर चुका था। मिशाल भी अपने घर की हो चुकी थी। सावेर अब 3 साल का इंतहाई शरारती और प्यारा सा बच्चा बन चुका था, जिसकी किलकारियों ने पूरी हवेली गूंजती रहती थी। सिकंदर, निकहत, साजदा बेगम और कामरान सबकी जान उस बच्चे में बसती थी। जरा ने मीरा को बर्थडे का गिफ्ट देने का सोचा। वो पूरी फैमिली को देखकर दोबारा उस ट्रिप पर गया जहाँ उसकी उस लाजवाब मोहब्बत का आगाज हुआ था। बाहर वही हल्की हल्की और खूबसूरत बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और जरान मेरा का हाथ पकड़े उसे अपनी उसी कॉटेज में ले आया था जहाँ वो उस तूफानी रात में पनाह गजीन हुए थे। कॉटेज के अंदर फायर प्लेस में आग जल रही थी और कमरे में एक मीठी सी गर्माहट फैली हुई थी। जावेर बाहर लॉन में अपनी दादी और नानों के साथ बर्फ से खेल रहा था। जरान ने दरवाजा बंद किया और मेरा को पीछे से अपने मजबूत बाहों में जकड़ लिया। तुम्हें याद है मेरा, ये वही जगह है जहाँ हम पहली बार मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के हुए थे। जरा ने उसके कान में सरगोशी की और उसके कंधों पर अपना चेहरा टिका दिया। मेरा शर्मा कर पलटी और जरा उनके सीने पर हाथ रखते बोली, मुझे सब याद है जरान, और मुझे वो तकलीफें भी याद है जो हमने सही। मेरा की आंखों में एक पुरसुकून चमक थी। जरान ने मुस्कुराकर उसका माथा चुमा और इंतहाई संजीदगी से बोला, उस कॉटेज ने हमें सच्ची मोहब्बत तो दी मेरा, मगर हमें जिंदगी का एक और रूप भी दिखाया। हम अपने जावेर को यही सिखाएंगे कि जिंदगी के हर मोड़ पर बड़ों की मर्जी को मुकद्दस रखें, क्योंकि इसी में असल कामयाबी और रिश्तों की मजबूती है। मेरा ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। जरान ने एक बुलंद और खूबरू कहका लगाया और इसे मजीद खुद में बेच लिया। क्या ख्याल है बेगम, जावेर अब बड़ा हो गया है तो एक और बच्चे की तैयारी ना कर ले, ताकि जावेर को खेलने के लिए एक छोटी सी बहन मिल जाए। जरान की इस दिल फरेब और रोमानवी जुमले पर मेरा का चेहरा शर्म से मुकम्मल सुर्ख हो गया। उसे जरान की चौड़ी सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए कहा, आप कभी नहीं सुधर सकते जरान, आप आज भी वैसे ही दीवाने और पागल हैं। जरान ने उसका हाथ पकड़कर चूमा और उसे अपने वजूद में मुकम्मल तौर पर गुम कर लिया। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पागल हूँ मेरी जान, और ये दीवानगी मरते दम तक ऐसी रहेगी। जरान ने उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की आखिरी और हतमी मोहर सब्त कर दी। बाहर गिरती हुई वो पाकीज़ा बर्फ और अंदर जलती हुई वो आग उनकी मोहब्बत को कुंदन बना रही थी, जिसमें तूफान भी आए, हाथ से बहे हुए आंसू भी गिरे, मगर आखिरकार सच्ची मोहब्बत ने सब्र और अपनों की दुआओं के साथ हर मुश्किल को मात देकर अपना अब्दी मुकाम हासिल कर ही लिया।